क्वेश्चन नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ आ डायग्राम दी है। देखो इतने कोई दिता पॉइंट ए इतने बी इतने बी, तो आ एंगल दिता बेटा 30 डिग्री। हुण सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन च टेंशन कढनी है। तो आ है टेंशन T1 T2 और इथे टेंशन है T3, इथे भी टेंशन है और आ है mg। तो इथों क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता होगा हर हिस्सा इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम, तो T3 इज इक्वल टू mg। और लेबनिज थ्योरम भी लग सकती है, कंपोनेंट वाला कांसेप्ट भी आ सकता है। तो आ एंगल 30 डिग्री है, T2 cos 30 डिग्री, सो आ एक बैलेंस कर रहे हैं। आ एक बैलेंस कर रहे हैं, जो तो रेशियो क्योंकि सामने T1 चाहिए आ कटे गए, तो tan 30 डिग्री बट सो T1 की वैल्यू आ गई mg बाय तो टेंशन इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग mg by tan 30 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट बोल ना 10th। A railway engine weighing 40 metric ton is traveling along a level track at a speed of 54 km per hour. What additional power is required to maintain the same speed up an incline rising 1 in 49? दोबारा बोलें। A railway track weighing 40 metric ton is traveling along a level track at a speed of 54 km per hour. हाँ, तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक ते जिहड़ा इंजन है वो कितनी स्पीड नाल मूव कर रहा है? 15 मीटर पर सेकंड। ਇਹਦਾ मास कितना दिता? 40 metric ton। मीट्रिक टन ਦਾ मतलब 1000 kg। ठीक है, हुण की चाहिए? What additional
additional power is required to maintain the same speed up an incline rising 1 in 49? हाँ, तो कितनी पावर चाहिए है कि इसनु कितना इंक्लाइंड है 1 in 49. 1 in 49 9. 1 in 49 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ 1 in 49 ਦਾ ਮਤਲਬ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/49 ਦਿੱਤੀ अच्छा हम गल समझने वाली पता की है जेड़ा हॉरिजॉन्टल ट्रैक है ना पुत्र ਇਹਦੇ ਚ weight velocity ਦੇ perpendicular तो पावर अगेंस्ट weight 0 है क्योंकि पावर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ rate of doing work dw/dt work over time average power ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰ force into velocity basically dot product of force and velocity ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ weight ਤੇ velocity perpendicular है तो इस करके weight ਦੇ against power भी 0 है normal reaction ਦੇ against power भी 0 है तो ਇੱਥੇ power ਕਿਹੜੀ ਹੈ against friction ਦੇ against ठीक है पर ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ inclined plane ਆ ਗਿਆ ਨਾ inclined plane ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ weight ਹੈ ਆ normal reaction है तो weight ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ mg cos θ ਇਹ velocity ਦੇ ਕੀ ਹੈ परपेंडिकुलर पर जेड़ा sin थीटा कंपोनेंट है ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਚੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ weight ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ तो इस करके इस न्यूमेरिकल ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰ तो ਆ ਫੋਰਸ ਹੈ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ mg sin θ ਹੁਣ m ਦਿੱਤਾ ਵਾ g ਪਤਾ ਵਾ sin θ ਪਤਾ ਵਾ v ਉਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ वैल्यूज पुट करो एडिशनल पावर पता लग जाएगा ठीक है नेक्स्ट बॉल 11 A body weighing 20 kg just slides down a rough inclined plane that rises 5 meter in every 12 meter. What is the coefficient of friction? a body Weighing 20 kg just slides down a rough inclined plane that rises 5 meter in every 12 meter. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਹੈ that rises 5 meter for 12 meter ਇਹ sin θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ
तो साइन थीटा 5/12 देता वा। ठीक है, हुण आपां की करना, हुण गल नूं समझो। जदों भी ना किसी भी इनकलाइंड सरफेस से बॉडी जस्ट स्लाइडिंग वर्ड आ जाए, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। जदों ना ये ध्यान रखना, जदों किसी इनकलाइंड सरफेस के ऊपर बॉडी जस्ट स्लाइडिंग आ जाए, इट मीन उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और उस वक्त जेड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। हुणे थ्योरी तो आनियां गल्लां, मतलब जो आप थ्योरी पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं घोटे नहीं लाने भी एंगल ऑफ रिपोज की हुंदा है ना। एंगल ऑफ रिपोज है कि अगर साडे सामने एक रफ इनकलाइंड प्लेन है तो असी की देखते हैं कि रफ इनकलाइंड प्लेन के उपर रखी बॉडी या तो रुकी रह सकती है या इकोदम थले आ जाती है छड्डन ते। पर जे इनकलाइंड प्लेन ते रखी हुई बॉडी बस थले आने तैयार है, जस्ट स्लाइडिंग, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उन्होंने एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और एंगल ऑफ रिपोज का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाल की संबंध है, म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई। फाई मतलब एंगल ऑफ रिपोज। हुण आपां इत्थे इंक्लाइंड प्लेन दे लई आ एंगल जिहड़ा थीटा वा वो फाई दे बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे tan फाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ tan थीटा लिख सकते हैं। ਤੇ ਸਾਨੂੰ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ना। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ tan थीटा, कोई गल नहीं, घबराना नहीं। tan थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इन्हीं की लिखाया था हाइयो स्टेटमेंट हाइयो। बारह मीटर जो हो 5 मीटर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 12 मीटर, ये 12 मीटर चलन के 5 मीटर ऊपर हो गए। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ tan थीटा चाहिए तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जानी। वन 44 माइनस 25 19 है ना। तो इट मींस tan थीटा के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस। Next बोलो। A body of mass 5 into 10 to the power minus 3 kg is launched upon a rough inclined plane, making an angle of 30 degree with the horizontal. Obtain the coefficient of friction between the body and the plane if the time of ascent is half the time of descent. देखो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है 12। आपका इंक्लाइंड प्लेन है।
बॉडी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ Lost. ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਬॉडी ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ weight नॉर्मल रिएक्शन पे फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन है ना और ये बॉडी कुछ दूर जाके रुकेगी है ना तो हम देखो आ है एंगल आ वाला तो mg cos थीटा और इधर साइन थीटा ठीक है हुन बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर करना तो इथे आके उन्हें रुक जाना ਉਹਦੀ फाइनल वेलोसिटी 0 है तो आह s है हुन s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ut plus हाफ at स्क्वायर ਤੋਂ है ना हुन एक गल होर सुनो अगर अगर बॉडी इथों इधर को गई तो इथे आके जदों रुकी तो सानू इनिशियल वेलोसिटी दसी है उन्हें नहीं दसी मास ही देता दिखाओ उन्हें देख लेना क्योंकि हुन देखो हुन बेटा जदों बॉडी इथे पहुंची तो मान लो u की s दी इनिशियल वेलोसिटी है s के दे बराबर आ गया ut प्लस हाफ अच्छा हम देखियो डिस्प्लेसमेंट ऊपर में है जबकि नेट फोर्स आ लग रही है तो नेट फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ होएगी कितनी एफ के प्लस mg sin थीटा बाय m और ए एफ के की ਹੁੰਦਾ ਵਾ न्यू के एंगल कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा g कॉमन आ गया न्यू के cos थीटा प्लस ए आ गया है ना और ए दी वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपको पता क्यों क्योंकि ए दी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दे ऑपोजिट है इस करके जेड़ा ए है वो आपा पुट की करना इथे माइनस हाफ ठीक है अच्छा हम दोबारा देखो u बारे में सानू पता कुछ नहीं पता हम दोबारा ए u और v 0 है यही है ना तो इथों इथे पहुंचने लिए कितना टाइम लगा t हुन आपां की करना दोबारा आ साडा फार्मूला बन चुका पर ये फार्मूला ना सानू एक प्रॉब्लम दे रहा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ u अननोन है ना स्टेटमेंट च दिता तो है ना ये नहीं चाहिए ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ a ਤੋਂ b ਤੱਕ एक ता फार्मूला लगाया दूसरा आप इथे लगा सकते हैं a तो b तक
तक v इज इक्वल टू u प्लस 80 ये लगा सकते। तो हम v की है थे ਇਹਦਾ मतलब u ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ -80 है ना मतलब ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ -80 स्क्वायर और कितना तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ तो -80 स्क्वायर है ना। अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ -80 स्क्वायर और आ की है प्लस की हो जाना -हाफ ले सकते हैं मींस ਇਹਦੀ ਲੋਡ -हाफ a आस ਬਣਿਆ ठीक। अच्छा ਹੁਣ दूसरा गल ਜਦੋਂ बॉडी में इथों ये टाइम ऑफ एसेंट है आ वाला टाइम ऑफ एसेंट है ऊपर ਨੂੰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ डिसेंट आना ਹੁਣ ਜਦੋਂ बॉडी नीचे ਨੂੰ आ रही है ਤਾਂ ਆ है mg नॉर्मल रिएक्शन और आ है फ्रिक्शन है ना। तो और इथों स्टार्ट हो रही है 0 तो डिस्प्लेसमेंट इतने तक कितनी हो रही है s थले एक्सेलरेशन ऊपर ਨੂੰ u की है पर यदि स्टार्ट इधरों 0 है रुक के आई है ਇਹਦਾ मतलब s इज इक्वल टू a वाले फार्मूला आ गया 0 तो s कितना बन गया हाफ पर a की वैल्यू कितनी है हुन a की वैल्यू mg sin theta minus fk over m है ना। तो हाफ इंटू g sin थीटा माइनस एफ के ओवर एम एफ के की है आ वाला तो आ वाली टर्म बन जाएंगे म्यू के ए टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वेट करते तो इधरों भी और वो भी तो इसका मतलब क्योंकि आ एसेंट लिए ऊपर जाने लिए आ वैल्यू भी नहीं है -हाफ और आ वैल्यू भी नहीं है हाफ जी कॉमन तो हाफ जी कटा गया माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना और आ की है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा पर नाल इथे क्या टीडी स्क्वायर ओवर और टाइम ऑफ डिसेंट कितना देता टाइम ऑफ ascent is half the time of descent तो डिसेंट डबल हो गया ਇਹਦਾ मतलब TD ओवर TA स्क्वायर की बन गया 4 आ गया मतलब आ टर्म 4 हो गई लो इनको सॉल्व कर
पासे इकट्ठियां कर लो। हुण जदों इन्हें इधर नूं आना +4 इधर आया तो इधर 3 रह जाना 3 म्यू के cos थीटा और आ चल जाना 5 sin थीटा। तो म्यू के की वैल्यू 5/3 tan थीटा आ गई। थीटा कितना करता 30।
नेक्स्ट नेक्स्ट कितना 13 बोलो तुम बोलो Mass of 100 kg is resting on a rough inclined plane of angle 30 degree. If coefficient of friction is 1 by root 3, find the greatest and the least force that acting parallel to the plane in both cases. Just maintain the mass in equilibrium. हम देखो तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी ना दो हालत हो सकती है. एक टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, थले आने की कोशिश कर रही है. तो थले आने रोकना पैना ना. तो हुण जदों थले आने की कोशिश कर रही है फ्रिक्शन किधर होनी ऊपर. और फोर्स भी इनू रोक के रखने दी फोर्स भी किधर नू लगानी पैनी. दूजा हालात की हो सकते हैं कि बॉडी टेंड्स टू मूव ऊपर नू है ना जाने की कोशिश कर रही. इसका मतलब Friction downwards. फ्रिक्शन है डाउनवर्ड हो गई है ना. हुण मतलब दो हालत है बॉडी. एक ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन थले नू है. ते दूसरा थले आने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर नू है. बट जी फोर्स है वो अपवर्ड है रोकन. अच्छा हुण इत्थे होर केड़ी फोर्स लगनी है इधर नू सॉरी mg और यहां इत्थे mg cos थीटा. ठीक है. हुण क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम च है ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी ऊपर नो फोर्स लग रही है F1 प्लस F0 तो F1 हो गया और इधर थल्ले नु कितनी है तो आप रेशो करनी है ना. की करना Force find greatest and least force that हाँ. acting parallel. तो आ लीस्ट होनी है जो हो ग्रेटेस्ट होनी है F2 और F की वैल्यू क्या आ जानी है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता है 1 by root 3. तो F की वैल्यू ठीक है म्यू cos थीटा प्लस ए मैक्सिमम है और आ मिनिमम होनी है.
नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 14. A block slides down an inclined plane of slope angle theta with constant velocity. It is then projected up the same plane with an initial velocity v naught. How far up the incline will it go? हाँ वो कहता भी एक ना बॉडी है आ थीटा एंगल है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬॉडी ਨੂੰ v naught velocity ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਈ यही पूछे ना कि नहीं है ना अच्छा हुन ये रफ इंक्लाइन प्लेन है हुन जदों बॉडी ऊपर ਨੂੰ जा रही है केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है वेट नॉर्मल रिएक्शन ते फ्रिक्शन ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ 0 ਹੈ as s ਦੀ ਵੈਲਿਊ -v naught square by 2 है ना और हमें थोड़ा ध्यान रखना a इधर ਨੂੰ है S ऊपर में है तो S पॉजिटिव है A नेगेटिव है तो आ बन गया साडा आंसर और A दी वैल्यू कितना कट सकते हैं mg sin theta plus fk by m ਹੁਣ fk नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ fk ਨੂੰ mu kn नहीं लिख सकते पर उन्हें ना एक कंडीशन दी देखो की कहना जदों बॉडी स्टार्टिंग लाइन पढ़ो A block slides down an inclined plane of slope angle theta with constant velocity. हाँ मतलब जदों ये बॉडी नीचे नु आ रही है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब जदों नीचे नु आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर नु है और mg और fk की वैल्यू कितनी है क्योंकि v कांस्टेंट है एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स 0 है मतलब जितनी फोर्स ऊपर नु उतनी तो आ fk की वैल्यू तो a आ गया 2 mg sin theta by m मतलब 2g sin theta कर लो तो s की वैल्यू आ जाएगी v naught square by 4g यही बने आंसर है ना ऑप्शन है कि नहीं बस जदों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करे या सेम डायरेक्शन जिस कांस्टेंट स्पीड ਨਾਲ मूव करे तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन तो ਉਹਦੇ नेट फोर्स 0 होनी ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
नेक्स्ट बोलो डायग्राम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो आना एक प्लेटफॉर्म है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਾ, ਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਆ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਵਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ m, तो आदमी का मास दिता 50, ब्लॉक का 25। हुण होर की दस्सिया उन्हें स्टेटमेंट पढ़ो। A block of mass 25 kg is raised by 50 kg man in two different ways. What is the action on the floor by man in two cases? If the floor yields to a normal force of 700 Newton, which mode should the man adopt to lift the block? ਹੁਣ ਦੇਖੋ मतलब ਜਿਹੜਾ प्लेटफॉर्म है ना ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ 700 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 700 ਹੀ ਹੈ ਨਾ 700 ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ है ना। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਲੋਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਉਨੀ ਫਲੋਰ ਤੇ लगेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन आदमी ते लग रही है ऊपर नो, ऊपर नो वेट थले नो है ना। होर केड़ी फोर्स लग रही है, हुण देखो आ जेड़ा वेट है आ फोर्स लग रही है टेंशन। हुण क्योंकि ये रस्सी आदमी ने पकड़ी है, आदमी का हाथ ही लंबा किया ना, तो मतलब इस आदमी के ऊपर आ तीन फोर्सेस लग रही हैं, और क्योंकि आदमी खड़ा हुआ इक्विलिब्रियम च है तो जितनी फोर्स ऊपर में उतनी मतलब n1 की वैल्यू t प्लस और t कितना वा कैपिटल M। m प्लस m, इधर आओ, आ है mg, आ है t। हुण आदमी क्योंकि इहनूं थल्ले नूं खिच रहा तो आदमी ते टेंशन हुणे ऊपर नूं लग रही, मतलब हुण आदमी दे तीन फोर्सेस जिहड़ियां उहदे च ऊपर नूं कितनी लग रही है, थल्ले नूं, मतलब हुण t n2 दी वैल्यू और p की वैल्यू तो n2 आ गया तो हुण स्मॉल m कैपिटल M तुहानूं दित्ते हुए आ, करो पुट। देखिए n2 दी वैल्यू 700 तो n दी वैल्यू 700 तो किहड़े केस च ज्यादा होंदी,